सन्मानयोग साध संगत जीओ, आपां हुणे भाई साहब जी पासों गुरबाणी कीर्तन सुन रहे सी। अखीर विच भाई साहब गा रहे सन, फरीदा जे तू मेरा होए रहें, सब जग तेरा होए। मेरे मन विच गुरु नानक देव महाराज जी की याद आ रही सी। उन्होंने अपनी बाणी विच बचन आखे ने, मन जीता जग जीत। बस सारा पवाड़ा ही साडे मन दा है। जिदन साडा मन समझ गया, जिदन मन ने गुरु दी मत नूं अपना लिया, फिर कोई बेगाना नहीं रह जाएगा, सारे ही अपने हो जाणगे। ये उन्ना चिर ही तेर मेर है, उन्ना चिर ही तू मैं है। अपना पराया है, दुश्मन ते सज्जन है, जिन्ना चिर असी अपने मन नूं नहीं जित लैंदे। सो संसार दे अंदर जे कोई काम साडे करन वाला है, वो केवल इहो ही है, मन नूं जितना। ते मन नूं जित्या जा सकदा है गुरुआं दी महापुरुषां दी संगत विच बैठ के, महापुरुषां दे बचनां नूं जीवन विच अपना के असीं अपने मन ते जरूर काबू पा सकदे हां, कंट्रोल कर सकदे हां। सो आओ अज दी विचार शुरू करदे हां, जो आपां शेख फरीद साहब जी दे सलोक समझते आ रहे हाँ। उसे ही लड़ी दे तहत अज आपां सलोक नंबर 97 अते 98 ये दो सलोक समझण दा यतन करांगे, जो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पावन पन्ना नंबर 1382 अते 1383 ते दर्ज हन। सलोक नंबर 97 विच आपां नूं फरीद साहब ने अपनी जिंदगी बारे, अपने जीवन बारे, जां इस तरह आखिए जीवन की नाशमानता बारे दो उदाहरणां लैके सानू समझाउण दा उन्होंने यतन कीता सी। एक उदाहरण सी कि दरिया दे किनारे दे उत्ते रुख होवे, दरिया भर के वगदा होवे ते वो अपने किनारियां नूं ढाह ला रहा होवे, ते उस किनारे ते खलोता होया रुख किन्ना कु चिर खलोता रह सकदा है। दूसरी उदाहरण सी कच्चे भांडे दी, कि कच्चे भांडे विच पानी किन्ना कु चिर ठहर सकदा है। सो ये दो उदाहरणां लैके सानू उन्होंने समझाउण दा यतन कीता सी कि ये जिहड़ा साडा शरीर है इस तरह ही है जिवें दरिया दे किनारे ते रुख खलोता होवे, पता नहीं कदों ढाह लाएगा दरिया ते रुख डिग पवेगा। साडा शरीर इसे तरह ही है जिवें किसी ने मिट्टी दे भांडे विच पानी रखिया होवे ते वो बहुता लम्मा समा विच टिकिया होया नहीं रह सकदा। इसे तरह साडा शरीर मिट्टी दे कच्चे भांडे वर्गा, इहदे विच सवास चल रहे ने ते आखिर इन्हां सवासां दी कोई गिणती है, कोई समा मुकर्रर है। जदों समा पूरा हो जाएगा, सवास पूरे हो जाणगे,
ਤੇ ਇਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਸੁੱਕਦਿਆਂ ਵੀ ਚਿਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਚਨ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ, ਫੂਟੈ ਘਾਟ ਜਿਉਂ ਪਾਣੀ। ਜਿਵੇਂ ਘੜੇ ਨੂੰ ਤਰੇੜ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਰੈਕ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਸ ਤਰੇੜ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਰਿਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਰਿਸਦਾ ਰਿਸਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਘੜਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਿਨ ਛਿਨ ਔਧ ਬਿਹਾਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਕਿੰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ 100 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੱਲਾਂ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਝਾਤੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਭਾਵੇਂ ਉਹ 100 ਸਾਲ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਜਾਈਂ ਗਵਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅਸੀਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜਾ ਬਣਾਈਏ, ਸੋਹਣੇ ਕਰਮ ਕਮਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਘਾਲੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਈਏ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀਵ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਲੋਕ ਨੰਬਰ 97 ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਫਰੀਦਾ ਮਹਿਲ ਨਿਸੱਖਣ ਰਹਿ ਗਏ, ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ, ਗੋਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਬਹਿਸਨ ਰੂਹਾਂ ਮਲ। ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਣੀ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਫਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬਰਾਂ 'ਚੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਹਿਲ ਨਿਸੱਖਣ ਰਹਿ ਗਏ। ਨਿਸੱਖਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਖਾਲੀ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਖਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਹ ਸਰੀਰ ਰੂਪੀ ਘਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮੰਨਦੀ ਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਜੀਵ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਵੀ ਫਿਰ ਨਿਸੱਖਣ ਯਾਨੀ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਸਾ ਆਇਆ ਤਲ। ਤਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਤਲ ਦੇ ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਹਾਰੀ ਪਈ ਹੋਈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੀਵ ਆਤਮਾ ਇਸ ਸਰੀਰ ਰੂਪ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਵਾਸ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਕਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਏ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦਾ ਫਿਰ ਨਿਵਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੋਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਬਰਾਂ। ਕਬਰਾਂ ਸੇ ਨਿਮਾਣੀਆਂ ਬਹਿਸਨ ਰੂਹਾਂ ਮਲ। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਉੱਥੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਮਾਲਕ ਜਾਣੇ
ये कित्थों तक सच्चाई है, पर सानू ये गल समझ लैनी चाहिदी है कि जदों ही साडे शरीर दे विचों साडे सुआस निकल गए जां जीव आत्मा निकल गई जां जो भी प्रभु ने जां कुदरत ने हीला वसीला बनाया होया है, जदों ये ढांचा बिनस जाएगा तो इहदा वासा जिहड़ा चाहे वो जमीन दे थल्ले हो जाए ते चाहे शमशान भूमि विच इहनूं अग विच जला दिता जाए ते चाहे इहनूं किते जल प्रवाह कर दिता जाए, गल इक्को ही है। रूहां दा की बनना है वो सानू पता नहीं, लेकिन सानू बाबा शेख फरीद जी एक गल समझाउणा चाहुंदे ने। वो कहिंदे ने आखी शेखा बंदगी चलन अज के कल, आ गल समझण वाली है। तीसरी लाइन, पहलियां दोवां लाइनां ते सानू सिर्फ इन्ना ही दस्सिया है कि जदों आत्मा ने शरीर नूं छड्डना है, शरीर रूपी महल खाली हो जाना है। कोई इनू साड़ देवेगा, कोई इनू दब देवेगा, कोई इनू पानी च प्रवाह देवेगा, जो कोई करेगा कर देगा। लेकिन एक कर्म कमाउण लई असीं संसार विच आए सां, ओह है आखी शेखा बंदगी। हे शेख फरीद बंदगी दी गल कर। असीं जदों अपने आपे वल झाती मारदे हां ते सानू समझ आ जांदी है कि असीं अपने जीवन विच की कुछ कीता है। सचमुच असां बंदगी कीती है, भले कर्म कीते ने, कि जां असीं सारी जिंदगी लुट खसोटी कीती है, झूठ ही बोलिया है, धोखाधड़ी कीती है, बेईमानी ठगी कीती है लोकां नाल। ये कोई नहीं दस पाएगा आपां नूं, लेकिन आपां नूं अपने आप दा आप पता हुंदा है ते पता होना चाहिए। फरीद साहब सानू आखदे ने कि भाई तू अपने अंदर झाती मार के वेख, तू बंदगी भी कीती है कि नहीं। गुरु साहब सानू बाणी विच समझाउंदे ने, कर बंदे तू बंदगी जिचर घट मैं साह। जिन्ना चिर तेरे शरीर में साह चलते ने, प्राण चलते ने, ऊर्जा चलती है, उन्ना चिर प्रभु की भगती कर, रब दे नाम का सिमरन करया कर, उस मालक नूं चेते रखिया कर जिस मालक ने तेनू ये सुंदर शरीर दिता है। फिर सानू गुरबाणी ये भी गल समझाउंदी है, बंदे बंदगी इख्तियार साहिब रोज़ धरो के प्यार। तू ओदा फिक्र ना कर कि मालक तेरे ते नाराज होवेगा कि तेरे ते राजी होवेगा, ओ गल तू पासे रहन दे। तू बंदगी इख्तियार कर, अपने जीवन विच कबूल कर, जिंदगी विच अपना प्रभु दी भगती नूं। गुरबाणी में सानू ये गल समझाई गई है, बिन हर भगत नहीं छुटकारा। परमात्मा दी भगती तो बिना इस जीव दा होर कीते कर्मां दे मुताबिक छुटकारा नहीं होने वाला। जिन्ने मर्जी कोई कर्म कांड अपनी जिंदगी विच करी जाए, वो कर्म कांड बस वो कर्म कांड ही हुंदे ने, उन्हां दा सानू अगे कोई लाभ नहीं मिलता। यानी इस जीवन तो बाद विच कोई भी लाभ नहीं प्राप्त हुंदा। अगे सानू फरीद साहब ने बहुत सोहना समझाया अपनी बाणी विच। आप जी फरमाउंदे ने, फरीदा मौते दा बन्ना एवं दिसै ज्यों दरियावै ढाह। हुण दरिया जदों भर के वगदा है, बहुत सारे लोग जिहड़े दरियावां दे किनारे ते रहिंदे ने, उन्हां नूं पता होएगा कि दरिया जदों भर के वगदा है, वो वड्डे वड्डे किनारे ढाह ला के अपने विच सुट लैंदा है ते रोड़ के अगे लै जांदा है। मौते दा बन्ना एवें दिसै। जिहड़े लोग सियाणे हुंदे ने, जिहड़े समझदार हुंदे ने, भावें मौत जे 100 सालां नूं आउणी होवे, उन्हां नूं दिस रही हुंदी है कि आई हुणे ही आई। वो इहदा विसाह नहीं करदे, वो दम दा भरोसा नहीं करदे। गुरु नानक साहब ने आपां नूं इह गल समझाई है ना, हम आदमी हाँ
एक दमी मोहलत मोहत ना जाना। असी तो एवें ही मन्नी बैठे हैं, पता नहीं मरना ही नहीं जिवें, पर सच्चाई ये है कि असी एक दम दे ही आदमी हाँ। दम चलदा है तो असी आदमी हाँ, जदों दम ना चलिया उदों राख दी ढेरी। बस इन्नी की तो गल है सारी। मौते दा बन्ना इवें दिसै। इस तरह फरीद साहब आखदे ने, मैनू तो मौत दा अगला पासा इस तरह नज़र आ रहा है कि जिवें दरिया ने किनारियां नूं ढाह लाई होवे तो कदों डिग पैने ने विच पता ही नहीं। फिर अगे आखदे ने कि साडा जीवन इत्थे समाप्त नहीं हो जाता, भी जिंदगी प्राण निकल गए तो शरीर ढह पिया तो गल मुक गई। वैसे अज बहुत सारे साइंसदान विग्यानक लोग ये गल आखन लग पे ने कि ये शरीर जदों तक है उदों तक ही सब कुछ है, उस तो अगे पिछे कुछ भी नहीं हुंदा। भावें इस तरह ही हुंदा होवेगा, सानू की पता है। मैनू एक बारी बड़ी पुरानी गल किसी ने पूछा कि मौत तो बाद की हुंदा है। मैं आख्या जी ये तो मरण तो बाद ही पता लगेगा, हुण पहलां की दस सकदे हां कि मौत तो बाद की हुंदा है। लेकिन बजुर्गां दीयां गल्लां झूठ नहीं हुंदियां। फरीद साहब आखदे ने, अग्गै दोजक तपिया सुनिए हूल पवै का हा हा। हूल दा मतलब है हा हल्ला, जिवें रौला पै रहा है। कहाहा दा मतलब है कि जिवें बहुत वड्डा शोर मचिया होया। अग्गै दोजक तपिया सुनिए। दोजक दा मतलब मुसलमान मत विच नरक कीता जांदा है। नरक दा मतलब दोजक कीता जांदा है इस्लाम विच। अग्गै दोजक तपिया सुनिए। तपिया दा मतलब ये नहीं लेना कि उत्थे कड़ाहे पै तपदे ने तेल वाले, ऐसा नहीं। सगों साडी जिंदगी दा जिहड़ा अगला समा है, जिहड़ा भविख है साडा, जे अज असी चंगे कर्म नहीं करते तो भविख तपिया ही हुंदा है। भविख विच दुख आउणे ही हुंदे ने। जिहड़े लोग माड़े कर्म करते ने उन्हां दा जीवन आपां वेखदे ही हाँ। जे असी एक उदाहरण लईए, पंजाब दे अंदर वो वड्डा एक कतल होया पिछे जे सिद्धू दा। हुण करन वालियां ने किन्ना लुक छिप के काम कीता, किन्ना दौड़ भज कीती कि असी किसी दे हत्थ ना आ जाइए पुलिस आदिक दे, पर आखिर वो बंदे फड़े गए। दोजक तपिया सुनिए होर की है। हुण पता नहीं वो किन्ना चिर तपदे रहणगे। पहला पुलिस दी कुट खाणगे, लगातार उन्हां ते तशद्दद होएगा, ते फिर लगातार जेल विच सड़नगे। होर दोजक किहड़ा तपिया सुनना है असी? ये दोजक तपिया साडे सामने है। इत्थे किन्ने लोग ने मॉल विच जां आसे पासे जाके वो गोलीबारी करते ने, फड़े जाते ने, सारी जिंदगी जेल विच सड़ते ने। फिर होर किहड़ा दोजक तपना है? ये दोजक ही तपिया होया है। इसे नूं ही समझना है आपां। अगे फरीद साहब ने बहुत सुंदर आख्या, गुरु पंजवें पातशाह महाराज जी ने आख्या कि वेखो ये बंदा ना अठे पैर खाण पीण दे दुख विच ही सारी जिंदगी गवा के चला जांदा। खाण पीण दा साजो समान इकट्ठा करदा रहिंदा। अज आ खाना है, अज आ पहनना है, अज इस घर विच रहना है, कल नूं उस घर विच रहना है। सारी जिंदगी खावन संदड़ा सूल दा मतलब है कि खाण पीण दी तैयारी दे दुख विच ही सारी जिंदगी निगा के चला जांदा। फिर आखदे ने दोजक पाउंदा क्यों रहा? जिस बंदे ने जिंदगी विच कोई चंगे काम ही ना कीते, सारी जिंदगी उन्हें खाण पीण दे इस चक्कर विच ही लुट खसुट करदे सारी जिंदगी कढ़ दित्ती, ते फिर अगे तपना ही होर की होना, अगे सड़ना ही है, फिर होर की होना। दोजक पाउंदा क्यों रहा? जां चित ना होए रसूल। जे चित विच परमात्मा नहीं वसिया ते फिर उस सड़न तो उस तपन तो ये किवें बचेगा? भाव ये नहीं बच पाएगा। फरीद साहब आखदे ने, एक ना नूं सब सोझी आई, एक फिरदे वे परवाह। एक इहो जे लोग ने जिन्हां नूं
बाबा फरीद की गल सुन के, गुरु नानक साहब के बचन सुन के, होर महापुरुषों के विचार सुन के सोझी आ गई जिंदगी दी कि मैं अपने जीवन विच करना की सी ते मैं करदा की रहा अज तक। जदों ये समझ आ जाती है उदों कुछ लोग जिहड़े ने वो बद अमल छड्ड के चंगे अमल कमाने शुरू कर देंदे ने। उन्हां दी जिंदगी उदों तो ही चंगी बननी शुरू हो जाती है। उन्हां नूं असीं गुरमत दी बोली विच गुरमुख आखदे हां। एक फिरदे बेपरवाह, एक इहो जे लोग हुंदे ने जिहड़े सत संगत भी करदे ने, धर्म मंदिरां विच भी आउंदे ने, लेकिन प्रभु की भगती वालों बेपरवाह रहिंदे ने। कर लवांगे, साडे चों बहुते लोग इस तरह ही करते ने भी जदों रिटायर होवांगे फिर वेखांगे, फिर बाणी का पाठ करांगे, फिर रब का नाम जपांगे, तो फिर अगे होर पंगा शुरू हो जाता है। हुण छोटे छोटे बच्चे ने, पोतरे ने, पोतरियां ने, दोतरे ने, हुण उन्हां नूं संभालना है। चलो ये पैरां ते खड़े हो जाण फिर मैं भगती करांगा। कौन जानदा है कि वो समा आएगा भगती करन दा कि नहीं। गुरु साहब सानू समझाउंदे ने हुणे इस वक्त सानू भगती करनी चाहिदी है। असी जिवें भी हाँ, असी सारे लोग गृहस्थी हाँ, मैं भी तो गृहस्थी हाँ। इत्थे मैं भी तो हुण जॉब ही करना पिया, तुसी भी जॉब ही करदे जे, ते दिक्कत की है। जॉब करके परां हटो ते भगती विच लगो। परेशानी किहड़ी है? कुछ भी नहीं। कोई जॉब नहीं रोकदी, कोई काम नहीं रोकदा कि तुसी रब दा नाम ना जपो। काम करो अपना। जदों काम तो वेले होवो 8 घंटे ते काम करदे हो, 16 घंटे कित्थे जांदे ने? 6 घंटे सौ लिया, 2 घंटे नहा धो लिया, बाकी 10 घंटे 8 घंटे कित्थे ने? क्यों नहीं असी रब की भगती कर सकते? असी कर सकते हाँ, लेकिन एक फिरदे बेपरवाह, बेपरवाही वे सारी जिंदगी बतीत कर लेंदे ने। वेखांगे, कर लवांगे, किते नहीं चलिया रब। फरीद साहब आखदे ने अमल जे कीतिया दुनी विच से दरगा ओ गाहा। ओ गाहा दा मतलब हुंदा है जी गवाही देनी, विटनस। अमल जे कीतिया दुनी विच, जेड़े चंगे कर्म कमाए दुनिया दे विच रह के, उन्हां कर्मां ने दरगाह विच जाके साडी गवाही देनी है, साडी साख भरनी है कि की कीता जिंदगी विच। बस आ गल समझ लैनी आपां। फरीदा अमल जे कीते दुनी विच दरगाह आए काम। उन्हां कम्मां ने दरगाह विच साडे काम आउणा है, जिहड़े काम असीं लोक भलाई लई कीते, जिहड़े काम असीं परोपकार लई कीते। भावें असीं परिवारिक आदमी हाँ, परिवार दे लई भी काम करने ने, वो छड्ड नहीं देने, लेकिन केवल इसे लिए सारी जिंदगी बिता के चले जाना, ये भी तो कितों की सियाणप नहीं। बस अमल जे कीतिया दुनी वैसे दरगाह ओ गाहा। उन्हां कर्मां ने रब्बी दरगाह दे वे साडी गवाही देनी है कि इस बंदे ने अपनी जिंदगी विच की कीता सी। बस जे अज दी विचार आपां नूं समझ आ जाए तो फिर आपां कर्म कांड त्याग दईए ते प्रभु की भगती विच जुड़ जाइए। ते प्रभु की भगती का मतलब ये नहीं कि असी सन्यास लै लैना है, जां असी जंगलों नूं चले जाना है, जां असी पहाड़ां दीयां गुफावां विच जा बैठना है। भगती का ये हरगिज मतलब नहीं। भगती का मतलब है ऊठत बैठत सोवत ध्याइयै, मार्ग चलत हरे हर गाइयै। ये है भगती गुरमत दी। तुसी हुणे खड़े होवोगे तो वाहिगुरू आख के खड़े होया जे, जदों फिर बैठोगे घरे जाके फिर वाहिगुरू आख के बैठिया जे। लंगर छकन लई पंगत विच बैठोगे वाहिगुरू आख के बैठिया जे। खड़े होवोगे लंगर छक के वाहिगुरू आख के खड़े होया जे। कार दा दरवाजा खोलोगे वाहिगुरू आख के खोलिया जे। विच बह के बंद करोगे वाहिगुरू आख के बंद करिया जे।
इनू आख्या गुरु जी ने ऊठत बैठत सोवत ध्याईऐ। जदों सोहणे पलंग उत्ते जाके लेटोगे रात आराम करन लई वाहिगुरु आख के लेटिया जे। सवेरे उठोगे वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे होए उठिया जे। ये है उठत बैठत सोवत ध्याईऐ। मार्ग चलत, जदों घरों गुरुद्वारे नूं तुरदे हो गल्लां ना रस्ते च करिया करो। वाहिगुरु वाहिगुरु कहंदे गुरुद्वारे तक आया करो। गुरुद्वारेओं घर जाओगे लोकां दी निंदिया चुगली ना करदे जाना कि वह बीबी ने इहो जे कपड़े पाए सी, उन्हें उहो जे पाए सी, वो फलाना उत्थे बैठा सी, फलाना उधर नूं मूँह करके बैठा सी। ये गल्लां करन दी बिल्कुल जरूरत नहीं। रस्ते विच जांदियां वाहिगुरु दी भगती करदे जाया जे। ये है ऊठत बैठत सोवत ध्याईऐ। मार्ग चलत हरे हर गाईऐ। ये है गुरमत दी भगती ते कोई औखी नहीं, ये बड़ी आसान है। सब तो आसान ही भगती गुरु नानक साहब ने सानू सिखाई है। पर जदों आपां इस तरह करन लग पए अपना मनुखा जीवन सफल होएगा ते इन्हां कर्मां ने ही दरगाह वे साडी गवाही देनी है भी इस बंदे ने कुछ चंगा कीता जिंदगी विच। ते जिहदी गवाही कर्म देणगे उन्होंने दुनिया की कोई ताकत कैद नहीं कर पाएगी। वो मानो मन जीता जग जीत वाली अवस्था विच पहुँच गया होएगा। उसने अपने मन नूं जित लिया ते हुण सारा संसार ही मानो उसने जित लिया। इन्ने क बचन तुसी अज प्रवान करना जी। तुसी बड़े प्यार नाल बैठ के अज दी विचार नूं सुनिया। आप सारी संगत दा दिलों धन्नवाद करदा हाँ। मेरे पासों हुईयां भुल्लां दी खिमा चाहुंदा हाँ। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।